Hello guys, welcome to IAS Bharat. To join our free crash course, fill the Google form given in the description below. Thank you. So hello dear students, welcome back to this mains session by IAS Bharat, and today I am back with another session, a very enriching session about essay. Okay, so we have already discussed many. We are going in a series of mains program where we are discussing GS1, GS2, then I also discussed ethics with you. So all the toppers are taking respective papers, and today we have one of the most important, and I'll say again, a paper where things are not clear in between the aspirants, that what works and what not works. Okay, so I'm talking about the paper of the essay. Okay, so today this is a specialized session, a full-fledged session where I'll talk everything about the essay, like how to go about it, what actually the essay demands, what the UPSC essay demands. Then further I'll share with you certain kind of, bare minimum, the kind of resources or the kind of patterns, frameworks or structures that are necessary for writing a good essay. So again, welcome back and stay tuned aspirants for this wonderful session. Okay, so this is our series of UPSC mains program by none other than IAS Bharat, which was a unit of RMIS Academy, and this is free of cost, available on YouTube, and each topper is actually enriching the kind of content with their own insights. So I am here today with the essay paper, and this is about me, Sonali Jha. I got AIR rank 89 this year, and we'll start today with the essay paper. So the essay paper, 250 marks, 2 essay and 3 hours, and it decides a chunk of your marks for the UPSC mains. Okay, so let's get started. Okay, so now some basics about the essay, that how it has been structured, what to write in that, how many hours, how it's been, how to manage that time in 3 hours, etc. Okay, so we'll start discussing that, and before discussing that, we'll start to analyze the importance of essay as to how this paper, actually see, we have 4 GS papers, which is called as general studies. General study means that you need to have certain kind of general content. Okay, you need to have knowledge about about a topic which has been asked. It is 20 questions, 3 hours and 50 pages. But when it comes to your essay, people, it's a different ball game. Now I'll tell you how it's a different ball game. Okay, so now first of all, why the essay matters. Okay, why the essay matters, why essay been said that okay, it's a different paper. When it comes to scoring, I have said this many times कि essay, ethics और optional, आपके जो 4 पेपर होते हैं, essay, ethics and optional, these are the most scoring of your papers. ठीक है, this will ensure a 60 to 70% chunk of your UPSC mains marks. Okay, so let's get started. ठीक है, तो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों मैटर करता है? वेरी फर्स्ट थिंग, हाईएस्ट मार्क्स पर आवर. ओके, प्रिपरेशन रेशियो अमंग ऑल द यूपीएससी पेपर्स. जैसा मैंने बताया, देखो अगर मान लो जो 2026 के बच्चे हैं हु आर गिविंग मेंस इन 2026, इफ दे आर प्रिपेयरिंग, सो फॉर देम एसए की प्रिपरेशन विल टेक लेस देन की मतलब 10% ऑफ देयर टाइम. अगर आप 2 महीने प्रिपेयर करते हो तो 60 डेज में से मुश्किल से आपके 3 to 5 डेज जाएंगे जो एसए के लिए जाएंगे, लेकिन मार्क्स आपके किस रेंज तक आ सकते हैं? एक जीएस के बराबर. जस्ट सी दिस मार्क्स, 120 till 135, a very good score range. I'll say this, a very good score range, starting from 115 till 135 goes the very good score range, and this is equals to 1 GS paper. इसीलिए कहा जाता है कि essay is actually a paper जहां बहुत कम input देके आपका जो input है that is very less as compared to your output in this paper. और यही हमें चाहिए कि कम पढ़ के और हम ज्यादा मार्क्स ला पाएं. So that is important. ठीक है, तो पहला पॉइंट ये है कि क्यों मैटर करता है. दूसरा, स्कोर रेंजेस आप देख सकते हो 120 से इतना. देखो अब मैं एक और बात बताती हूँ, स्कोर रेंजेस देखो, यहाँ पे द स्कोर रेंजेस गो मतलब फ्रॉम लाइक पीपल ऑल्सो गेट 60, 70 एंड these are very poor marks. Okay, but then the another scenario, people also get 130, 120 and this is a very good scenario. So that is what I'm talking about. ठीक है, कि एसए के पेपर में अगर आपको स्ट्रैटेजी ही नहीं पता, अगर आपने मतलब इट्स नॉट अबाउट
पढ़ने वाला पेपर नहीं है. इट्स नॉट अ पेपर वे यू हैव टू स्टडी. इट्स अ पेपर जहां पे आपको स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट होगी. आपको लिखना कैसे है, आपको वो 14 पेजेस, द 14 पेजेस विच आर फॉर वन essay, हाउ यू हैव टू फिल दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो दिस डिमांड्स अ गुड अमाउंट ऑफ स्ट्रैटेजी, दिस पेपर ऑफ essay. ठीक है, अब नेक्स्ट जो मैंने आपको पहले ही बताया था, दैट essay, एथिक्स एंड ऑप्शनल आर द स्विंग पेपर्स. स्विंग पेपर्स का मतलब कि ये कॉम्पिटिटिव एज देते हैं. ठीक है, अब कैलकुलेशन से समझ लेते हैं. मान लीजिए अ गुड एसे विल गिव यू अराउंड 120 मार्क्स, लेट्स से, विच इज डूएबल. आई एम नॉट सेइंग कि 140 आ जाएंगे, दैट इज समथिंग अ बिट वेरी एक्सीलेंट, पर 120 तक डूएबल है. ठीक है, उसके बाद एथिक्स भी कर लो आप. हमने 120 वाला क्लब्स हम चला रहे हैं, दैट वी आर गोइंग थ्रू द टॉपर्स, एंड जिसमें मैंने एथिक्स का पोर्शन ले रखा है. तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि 125 तक आपका स्कोर एथिक्स में अच्छे से बन सकता है. ठीक है, फिर आप ले लो, नेक्स्ट विल बी योर ऑप्शनल. ओके, ऑप्शनल का भी मैंने आपको बताया था कि ऑप्शनल में इफ यू गो गुड तो मान के चलो यू विल गेट 280 मार्क्स. सो इफ यू सी दिस विल actually come out to be around your how much 530 to 520 approx marks. So you can see, मतलब आपका मेजर चंक आउट ऑफ, लेट्स से अगर मेंस का स्कोर 800 है तो उसमें से 550 ऑलमोस्ट, ठीक है, 530 मार्क्स कम्स डायरेक्टली फ्रॉम दीज सब्जेक्ट्स. ठीक है, तो इस कैलकुलेशन में ध्यान रख के ही प्रिपरेशन करिए. मेनी पीपल इग्नोर एसे, वो एथिक्स में इतना टाइम नहीं देते, जबकि यहाँ पे मार्क्स आपके ज्यादा आ सकते हैं. ठीक है, सो दैट इज व्हाट इज मेंट बाय स्विंग पेपर. ठीक है, अब हम आ जाते हैं अगेन, उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट में देना चाहूंगी कि GS 1, 2 और जो 3 होते हैं, दे हैव लिमिटेड स्कोप फॉर स्कोर वेरिएशन. क्या व्हाट डज इट मीन्स? GS 1, 2, 3 में देखो 1, 2 एंड 3 की अगर हम बात करें अबाउट द GS, देन द स्कोर्स आर रफली GS 1 में अगर समवन इज अ टॉपर तो 100 से 115, दिस इज अ गुड स्कोर. GS 2 में अगेन 120 से 125 इज अ रेंज. ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट द गुड स्टूडेंट्स, मतलब जो एक एवरेज अच्छा खासा कंटेंट है जिनके पास, हु नो वेल दैट हाउ टू प्रेजेंट एक्सेट्रा. तो मैं एक जनरल बात कर रही हूँ. ठीक है, एंड 90, तो इसमें ज्यादा वेरिएशन नहीं है, पर एसे में आप बहुत वेरिएशन देखोगे. मैंने पहले ही बता दिया 60 मार्क्स से लेके 130 से 140 मार्क्स तक वेरिएशन होता है. तो उस वेरिएशन को आपको अपना स्ट्रेंथ बनाना है, कैप्चर करना है, एंड हाउ यू विल डू दैट वील डिस्कस फर्दर. ठीक है, तो टॉपर्स कंसिस्टेंटली स्कोर वेल इन एसे, एथिक्स एंड ऑप्शनल. दिस इज वेरी ट्रू. किसी भी टॉपर को देख लेना, लाइक लेट मी टेल यू माई एग्जाम्पल. आई गॉट रियली वेरी बैड मार्क्स. आई गॉट अराउंड 90 मार्क्स in essay last year. This year I have got 115 around. Okay, so you can see 90 से 25 मार्क्स का जंप, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसीलिए किसी भी टॉपर की कॉपी उठा के देख लो, दे वुड हैव स्कोर्ड रियली गुड इन एन, मतलब रियली गुड मतलब कि ऑन एन एवरेज वेरिएशन ज्यादा नहीं होगा, 120 की रेंज में उनके मार्क्स होंगे. इन व्हाट? इन एसे, एथिक्स और 2 ऑप्शनल के जो पेपर्स होते हैं. सो दैट शुड बी योर कोर डील कि आप इन 4 पेपर्स में बेस्ट करो. एंड इफ यू डू दैट, GS इज मैनेजेबल स्टूडेंट्स एंड यू कैन रियली स्कोर अ वेरी गुड रैंक. ठीक है, सो प्लीज पे अटेंशन कि एसे, एथिक्स और ऑप्शनल पे यू हैव टू गिव अ, मतलब अच्छे से अटेंशन देना है. ठीक है, अब हम एसे की स्ट्रेटजी में डेल्व करते हैं कि हाउ टू गो अबाउट. ठीक है, तो टू अंडरस्टैंड कि मतलब एसेज आते कैसे हैं, इवोल्यूशन कैसे हुआ. देखो अगेन 2015 की मैं बात करती हूँ, तो 2015 में पीपल यूज टू गेट 150 to 160, 145, 130 वॉज वेरी लाइक एज एन एवरेज स्कोर. ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट 2015 जहां पे एक एवरेज स्कोर होता था 130. एंड आई हैव कम टू 2025 जहां पे एक एवरेज स्कोर क्या हो चुका है, 110. सो डू यू सी, दिस इज द एवरेज इन एसे. ओके, सो डू यू सी कितना वेरिएशन आ गया है. 2015 तक कहीं ना कहीं बहुत अच्छे स्कोर्स आते थे, लाइक इफ देयर आर 900 रैंकर्स, सो एटलीस्ट 50% ऑफ देम विल गेट 120, 130. पर अब एसए में स्कोर लाना इज वेरी डिफिकल्ट. ओके, तो इसीलिए व्हाट आई एम सेइंग कि यू कैन सी द इवोल्यूशन हुआ है इन टर्म्स ऑफ कि एसए के टॉपिक्स कैसे आ रहे हैं, पेपर कैसा आ रहा है, यूपीएससी डिमांड क्या कर रही है. ठीक है, देखो पेपर आना ना आना दैट इज अनदर थिंग. द चेकिंग पैटर्न कि जो द एग्जामिनर्स हु आर चेकिंग योर पेपर, अब उनके माइंडसेट कैसा हो चुका है, किस तरीके से इवॉल्व हो रहा है. सो आई विल टॉक अबाउट दैट अ बिट. ठीक है, सबसे पहले जो होता था, दिस इज समथिंग अराउंड 2015-16 की बात कर लेते हैं, इशू बेस्ड एस्से आता था, या फिर यू कैन से GS बेस्ड एस्से. ठीक है, GS बेस्ड एस्से आते थे.
लाइक व्हाट इन्वायरमेंट, गवर्नेंस, इकोनॉमी, ऐसे एसेज आते थे, दैट हाउ कैन इंडिया बी अ डेवलप्ड नेशन, या फिर इन्वायरमेंट शुड बी प्रोटेक्टेड एट एनी कॉस्ट, ऐसे ऐसे करके इशू बेस्ड, जीएस बेस्ड एसेज आते थे. तो यू नो स्टूडेंट्स यूज्ड टू राइट वेल. ओके, अब उसके बाद क्या हुआ, फिर थोड़ा हम आते हैं 2018 एंड 22 के टाइम पे, फिर थोड़ा सा मिक्स होने लग गया. ठीक है, मिक्स पैटर्न होने लग गया कि थोड़ा सा उसमें फिलोसफी भी घुसा देते थे. कभी कभी वो जो यू विल गेट एक्चुअली 4 ऑप्शंस टू सेलेक्ट, कि उसमें से एक ऐसे लिखना है, 4 टॉपिक्स एंड 1 ऐसे टू राइट आउट ऑफ दोस. तो अब क्या होने लग गया उसके बाद नेक्स्ट, की थोड़ा सा मिक्स होने लग गया. दे यूज्ड टू गिव द इशू ऑल्सो एंड दे यूज्ड टू बैलेंस इट विद सम काइंड ऑफ एब्स्ट्रैक्ट यू नो थीम या फिर फिलोसफी ऑल्सो. ओके, देन व्हाट हैपेंड सिंस 2023, जो नया ट्रेंड है, इट इज टू मच एब्स्ट्रैक्ट एंड फिलोसफिकल. Okay, please remember student that philosophy is very important in essay. That is what UPSC is necessarily demanding, and GS should not be there. So this should be your criteria for essay. That is what is the main crux. If you want to take anything from this session, take that essay demands philosophy, it demands a certain kind of poetical language in you, but it does not demands GS. Okay, because GS has been tested in your 4 papers across. Okay, so it's a game of mostly that how you are articulating. ठीक है, तो अब क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट और फिलोसफिकल एस्से आते हैं. जैसे कि आप 2000 if 2020 से आप पेपर्स उठा के देखेंगे तो आप देखेंगे लाइक हाउ दैट लाइफ इज नॉट अ डेस्टिनेशन बट इट इज अ जर्नी, या फिर द मोस्ट बिटर एक्सपीरियंसेस आर बीन लर्नड in the in the battlefield of war, या फिर what like those all those who wander are not lost. तो ऐसे ऐसे करके philosophical topics अब आने लगे हैं. तो अब what does it means? ठीक है, अब some students may ask कि मैम we are not that good in philosophy, और मैम we come from a very technical background like that of engineering, या फिर कोई भी बहुत मैम we do not have so much flowery content to write in essay. So for that what is needed? What this means is that you need to have a bit conceptual thinking, you need to have philosophical awareness, philosophical touch, which is generally essential, and how you will build upon it I'll explain you further. ठीक है, पर ये ध्यान रखना कि philosophy बहुत important होता जा रहा है. Whenever you are writing an essay, just make sure कि थोड़ा सा philosophical poetical touch आपके essay में होना जरूरी है. Okay, so you have seen कैसे evolve हुए हैं, marks भी evolve हुए हैं. Earlier it used to be 130, अब 110 की तरफ आ रहा है धीरे धीरे करके. Okay, so now let's get further. Okay, अब आता है, ठीक है, फिलोसफिकल एस्से आ रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट एस्से आ रहे हैं. सो नाउ कम्स दैट वी हैव 4 एस्सेज. सो 1 out of 4 एस्से हमें करना होता है. This is the choices. Okay, these are the choices. 4 essay topics, you have to choose one. So how we will choose one, ma'am? Okay, so I'll first discuss that the don'ts, that what you should not do while selecting the essay, and the do's, that on what basis should you select the essay. This is very important. Okay, if your essay topic is suited to you, suited here means that if your essay is one topic in which you are comfortable, of which you know the message it wants to give, you are clear, एक कहते हैं from the gut feeling you are clear that okay, this is the message of the essay, interpretation clear है, your 50% work is done here only, 60% work is finished if you decide the topic well. So now what are the parameters? Okay, so first we'll go that what not to choose. First is emotional attachment to a topic. ठीक है, emotional मतलब आप कोई topic देख रहे हो और उसको लेके you are too much emotional कि okay I know the message or something like that, तो उसके basis पे you should not be choosing that topic. जैसे कि how I'll see here कि जैसे I like philosophy so I'll pick this. ओके, अब देखो, अब जैसे मैंने आपको समझाया कि फिलोसफिकल एस्से आते हैं, सो सम स्टूडेंट मस्ट बी कि ओके फिलोसफिकल आते हैं, हम सारी फिलोसफी पढ़ के चल जाते हैं, वील गो विद हम सारे जितना भी फिलोसफर्स, कोट्स, थिंकर्स, विल डू दैट, और हम जाके वहां से एक फिलोसफिकल टॉपिक चूज कर लेंगे. नो, दैट इज ऑल्सो नॉट अ गुड स्ट्रेटजी. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इज फियर ऑफ पॉपुलैरिटी, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. स्टूडेंट्स से कि अदर्स विल राइट दिस सो आई विल अवॉइड दिस, ऐसा भी एक मिथ है. दिस इज एक्चुअली अ मिथ. इट इज बीन सेड कि द टॉपिक जो कोई भी नहीं उस टॉपिक को चूज करता, अगर आप एक यूनिक टॉपिक चूज करते हैं तो आपके मार्क्स बढ़ेंगे, बट दिस इज एक्चुअली अ मिथ. इट डजंट हैपन्स. ठीक है, बिकॉज व्हाई इट डजंट हैपन, देखो अल्टीमेटली जब एग्जामिनर विल चेक योर कॉपी, ही एक्चुअली वांट्स व्हाट कि
योर आर्टिकुलेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओके, नथिंग बट योर आर्टिकुलेशन, कि आपने एस्से को लिखा कैसे है, आपको वो टॉपिक अच्छे से समझ आया है और क्या आप उसे किसी और को समझा पा रहे हो या नहीं. डजेंट मैटर्स कि उस एस्से पे कितने बच्चों ने लिखा है या नहीं लिखा. इट एक्चुअली मैटर्स दैट आप जो समझाना चाह रहे हो इज इट एक्सप्लेनेबल इन गुड वर्ड्स. ओके, नेक्स्ट मिथ क्या होता है, फेमिलियरिटी विद द टॉपिक, कि ठीक है आई हैव हर्ड ऑफ दिस टॉपिक एंड आई हैव पार्शियल नॉलेज and I'll write the essay. Please do not do that. I'll give you an example. Abhi there was I think in recent years only, like 24 या 25 में ऐसा हुआ था that there was some topic of essay which was actually copied from a test series itself. मतलब कुछ बच्चों ने they have already seen that topic in the their test series और वही topic वापस से जाके real exam में भी आ गया. So they felt कि अब तो we'll write the best essay on it because we have already did practice it in our test series. But उससे क्या हुआ, उससे necessarily score अच्छे नहीं आए. Okay, so I have met students जिन्होंने who personally told me that ma'am I have practiced this same essay in my test series and the same essay came in the real exam, but when I practiced it ma'am actually I did not get good marks. ठीक है, तो मैं वही कह रही हूँ कि जरूरी नहीं है कि एक टॉपिक अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर कर रखा है एंड यू जस्ट गो देयर एंड राइट दैट कैन फेच यू मार्क्स. नो, बिकॉज एस्से नीड समथिंग विच इज कॉल्ड एज योर नेचुरलनेस. इट वांट्स यू टू बी नेचुरल, इट वांट्स यू टू बी यूनिक. अगर आप वही सेम एस्से लिख के आ जाओगे देयर इज नो गारंटी कि आपको मार्क्स मिलेंगे. ओके, सो पॉइंट इज की जस्ट बिकॉज आपको कोई टॉपिक एकदम से आपने देखा और आपने सुना लग रहा है, डू नॉट चूज दैट. ओके, नाउ आप कहोगे देन मैम व्हाट आर द पैरामीटर्स टू चूज इट. तो आप ध्यान देना कि व्हाट आर द एक्चुअल पैरामीटर. सबसे पहला होता है पैरामीटर कंटेंट. कंटेंट मीन्स आपके पास उस एस्से से रिलेटेड, उसका जो मैसेज है उससे रिलेटेड कोई एनेक्डोट है, कोई एग्जाम्पल है, quotes, phrases, thinkers, books, scholars. This is very important. That is the king. That is what I have said always, that content is the king. कहीं पे भी content is actually the king. No matter आपने उस एस्से को कितनी बार कहीं पे पढ़ रखा हो, मैटर क्या करता है कि आपके अगर आपने पढ़ रखा है पर आपके पास उसका सारा डेटा है तभी यू शुड गो फॉर दैट एस्से. ठीक है, तो आपके पास फैक्ट्स, एग्जाम्पल्स, ठीक है, फैक्ट्स, एग्जाम्पल्स, डेटास, थिंकर्स रेडीमेड होने चाहिए. नेक्स्ट क्या होना चाहिए, क्लियरिटी ऑफ आइडिया. ठीक है, क्लैरिटी, क्लियर आइडियाज, मतलब आपको एकदम उसके बारे में आफ्टर रीडिंग दैट टॉपिक यू शुड बी क्लियर दैट ओके द मैसेज ऑफ दिस टॉपिक इज XYZ. ओके, फॉर इंस्टेंस मैं बताती हूँ in 2025 that was this year's mains, I did the topic that life is not a journey but life is not a destination but a journey. Okay, life is not a destination but a journey. तो इसका simple message क्या है, that life is ongoing, there is nothing which is called as stability in life. We get sorrows also, we get happy also sometimes. So it's a mix of all the experience and we should be learning from all the experience and continue in our life. तो इसका basic message जो clear message है वो मुझे पता है. So that is what is thing कि आपको clarity of ideas होनी चाहिए about that topic, that what is the basic or the bare minimum message of this topic. Okay, next, the prior practice, you have written on this topic very similar ones before. Okay, that was what I was talking कि अगर आपने कोई essay लिखा हो, even this is not a guarantee, पर most ये जो दो important है, that is the content and the clarity, और आपको उसके बारे में you should be knowing कि हाँ इसका antithesis क्या होगा, what is the real message of the I'll say the real message of the essay wants to give. ठीक है, तो ये पैरामीटर होना चाहिए अपना एस्से लिखने के लिए. Okay, so you have seen articulation and the real message that the essay wants to give. These two things are very important. Okay, so we have seen how to select the topic. Okay, now we'll move forward. Okay, now ठीक है, अब थोड़ा सा जल्दी से हम पेपर स्ट्रक्चर को देख लेते हैं. ऑलरेडी बहुत बच्चों को पता ही होगा, स्टिल जस्ट फॉर द बिगनर्स देख लेते हैं कि कैसे, मतलब स्ट्रक्चर, हाउ द पेपर इज स्ट्रक्चर. इट इज ऑफ 250 मार्क्स, 2 essays आर देयर. ठीक है, 90 मिनट पर essay. ठीक है, टाइम लिमिट टाइम लिमिट इज 90 मिनट पर essay, 120 मिनट, 2 essays, 1200 words और let's say 1000 words. Okay, 1000 words approx.
okay, and the approx, and then we have what, we have pages. Okay, one thing more, pages earlier like till 2025 पेजेस यूज टू बी अराउंड 12 बट नाउ इट इज 14. ठीक है, ये बहुत ध्यान देने की बात है. इस साल ये चेंज आया था व्हेन वी वर गिविंग मेंस दिस ईयर. दिस वाज द चेंज दैट वी सॉ, दैट द पेजेस हैव बीन इंक्रीज्ड. ठीक है, एसए के पेजेस इंक्रीज हो चुके हैं, 14 तक जा चुके हैं. ठीक है, तो ये ध्यान रखना. पिछले लाइक बिफोर 2025 द एसए पेजेस यूज टू बी अराउंड 12 बट नाउ इट हैज इंक्रीज टू 14. सो आप एक 15 पेज का फ्रेमवर्क लेके चले अपने माइंड में. ओके, नाउ नेक्स्ट मोस्ट important thing, that both essays must receive equal energy, very important, and the content depth. Okay, and then I'll also talk about, okay, so what does this means, that see what happens when people start writing. Okay, let's say आपने पहला essay, आप दो essay हैं, ठीक है, section A हो गया and section B. ठीक है, तो इनमें equally 90 minutes बटना चाहिए in both of these two. Okay, now what happens, which happened with me, that in one of my mains that I wrote in the first mains, what I did was that the first essay took a lot of time. ठीक है, that I was in this I was in this thinking of perfection. So when I wrote the first essay, there was a lot of content, there was a lot of structuring, lot of brainstorming, and it actually, rather than taking 90 minutes, it took me around 110 minutes. ठीक है, तो मतलब आधे से ज्यादा टाइम पहले एसे में ही चला गया. सो दैट शुड नॉट हैपन. बहुत इंपॉर्टेंट है, बोथ एसेज आर इक्वली इंपॉर्टेंट. ठीक है, इक्वली इंपॉर्टेंट. सेक्शन ए एंड सेक्शन बी इक्वली इंपॉर्टेंट. प्लीज रिमेंबर दिस. 90 मिनट्स इज द रूल. 5 मिनट ज्यादा हो जाए चलेगा, नॉट मोर देन दैट. प्लीज मेक श्योर दैट यू गिव इक्वल टाइम टू बोथ ऑफ देम. ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज, द फर्स्ट एसे मस्ट नॉट ड्रेन द रिसोर्सेज फॉर द सेकेंड वन. अपार्ट फ्रॉम दैट, अ बेसिक structure is that 80 words per pages and around 20 lines, you can say. Okay, 20 lines, 4 words per line. So they have given, ठीक है, मतलब one page is equals to around 3 paragraphs, or you can even do 2 or 3. Okay, 2 or 3 paragraph is equals to around 80 words. This should be the this should be your whatever you say, this should be your template to write a page. 80 words, and that equals to what, how many, it equals to one like 4 words per line. Okay, like that. So is equals to around 20 lines. This is very important, please see this. Okay, so your one page should have 2 to 3 paragraphs. Okay, in total, let's say if you are writing 2 paragraphs, 40 words per paragraph, or 3, you divide like that, approximately 80 words per page and 4 words per line, 4 to 5 words per line and 20 lines in general. ठीक है, तो ये पैरामीटर देख के आप थोड़ा ध्यान देना कि मतलब मुझे ऐसा ही एक ऐसे लिखना है जहाँ पे एक पेज में 2 से 3 पैराग्राफ्स हो एंड अराउंड 80 वर्ड्स एक पेज में आ जाए. ठीक है, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर था. अब हम आगे बढ़ते हैं. ओके, लेट्स गो फर्दर. ठीक है, so now like the essay, the structure, how it goes about. Okay, so first first there will be introduction. Okay, then there will be body will be further divided into a large, and then there will be conclusion. ओके, सो दिस वुड बी द स्ट्रक्चर. अब बॉडी फर्दर कैसे डिवाइड होगा वो भी हम थोड़ा बहुत बात करेंगे, बट उससे पहले हम इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन का देख लेते हैं. ठीक है, सम टिप्स फॉर इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन. नाउ व्हाट, फर्स्ट इज स्टार्टिंग विद द कंटेक्स्ट. ओपन विद द कंपेलिंग कंटेक्स्ट, एनेक्डोट और थॉट प्रोवोकिंग quote that draws the reader immediately. Okay, so your intro should be this should be hooking. Okay, it should be interesting. This is very important. ठीक है, that is what it has been said, that your intro should be compelling. ठीक है, मतलब कि जो एग्जामिनर ने, let's say examiner has been checking lots of copies, he's checking since morning he has checked 20 to 25 copies, and now comes your essay copy. So whenever he opens, the introduction should be such that he should be hooked to your essay. He wants to read it. Either you can start with a story, or you can start with an anecdote, or you can even pose question posing is also a good approach. You can pose the question. So like that, your intro should be built upon the context, and it should be such that it should look interesting. ठीक है, फिर हम आ जाते हैं फिर बॉडी के लिए कैसे करना है. ठीक है, बॉडी
बॉडी के लिए यू हैव टू थिंक लाइक अ फिल्म का डायरेक्टर. हाउ डज अ फिल्म का डायरेक्टर थिंक्स? नरेट द एसे लाइक अ स्टोरी विद ट्विस्ट्स, turns, building up, and the climax in the conclusion. This line is very important. Just like a film director, your essay should be a mini story in 14 to 15 pages. What does it means? It should be having some introduction, a good introduction. Introduction should flow in a way that it should go to the real demand of the essay, the message. Then in every paragraph, you should be having some twists and turns. That is, you can ask some questions, you can pose some kind of dimension, and in the end you should also come back to a climax, that is your conclusion. ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या चीज होगी कि एक स्टोरी बनानी है आपको. वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू प्रिपेयर अ स्टोरी इन एसे. ठीक है, अब उसके बाद क्या है, रेलेवेंस बना के रखना है. एवरी पैराग्राफ मस्ट बी एंकर्ड टू द सेंट्रल थीम. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. This year what I changed was that relevance, and एवरी पैराग्राफ को सेंट्रल थीम से बार बार जोड़ना है. ये मैंने करा था. रीआइटरेट द मेन मैसेज ऑफ योर एसे एवरी टाइम यू राइट अ एग्जाम्पल. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट. मैं जितने भी एग्जाम्पल्स लिखती थी, मैं किसी ना किसी लाइन में फिर से वापस आके आई यूज टू गिव द सेंट्रल मैसेज. ठीक है, आई हैव सीन दिस. मैंने बहुत सारी कॉपीज देखी है स्टूडेंट्स की. व्हाट दे डू, दे स्टार्ट वेल. ठीक है, दे स्टार्ट वेल विद अ गुड इंट्रोडक्शन, बट देन व्हाट हैपेंस, देन दे गो फर्दर, व्हेन दे गो इन द अदर पैराग्राफ्स, then somehow the flow gets missing और relevance भी कम हो जाती है. ठीक है, अब आपको करना क्या है, हर बार जब आप एक पैराग्राफ लिख रहे हो तो just keep it in your mind the main topic of your essay, कि whether the paragraph shows the main topic or not, and if it does not show, fit a line into it. ठीक है, किसी भी लैंग्वेज में घुमा फिरा के एक लाइन बनाओ जिससे ऐसा लगे कि हाँ, जो मेन टॉपिक है उससे कहीं ना कहीं ये essay जुड़ा है. ठीक है, नेक्स्ट, clear language, simple direct language throughout. Clarity, precision will build complexity and ornamentation. समझ आ रहा है? Complexity मत करना इधर. It would be against your marking. क्यों? क्योंकि देखो, just try to understand the examiner's mindset. ठीक है, examiner आया, he is trying to see कि ठीक है, I'll give marks to this student, I can do whatever like is good for the student. पर if you make your ideas very complex, अगर आप बहुत सारे ideas एक ही जगह डालते जा रहे हो, एक ही पैराग्राफ में you write 3-4 examples, scholars, और कुछ explain ही नहीं किया, clarity है ही नहीं लैंग्वेज में, then actually the examiner will get frustrated. Okay, so just to be try to be very clear कि करना क्या है एक्चुअली. देखो, सबसे पहला है clear words. ठीक है, clear words. दूसरा है come back to topic. come back to topic. ये दो चीजें आपके एक पैराग्राफ में होना चाहिए. This is the main motive of your essay. One paragraph should be having clear words. Okay, it should be having clear words, plus it should be coming back again and again to the main topic of the essay. These two things are must. ठीक है, simple और clear words use करो और बार बार उस essay के मैसेज को अपने पैराग्राफ में दिखाने की कोशिश करो. ठीक है, so these two things are very important. और ये थे सारे ये पूरा फ्रेमवर्क है कि कैसा कंक्लूजन होना चाहिए, स्टोरी, हाउ विल द स्टोरी गो, और लैंग्वेज शुड बी हाउ शुड द लैंग्वेज गो. ओके, नाउ नेक्स्ट. ओके, नाउ अब मैंने आपको एक ब्रीफ बता दिया. आई हैव टोल्ड यू ब्रीफ कि हाउ शुड द एसे गो. नाउ वील टॉक अबाउट द स्ट्रक्चरिंग ऑफ द एसे. ठीक है, स्ट्रक्चरिंग कह लो या फिर यू कैन से फॉर्मेट. अब ये क्यों जरूरी है, बिकॉज यू एसे इज इक्वल्स टू अ काइंड ऑफ स्टोरी. देयरफॉर स्टोरी में क्या होना चाहिए, फ्लो, और फ्लो आएगा कहां से, फ्रॉम योर स्ट्रक्चरिंग. ठीक है, तो फ्लो के लिए, एक स्ट्रक्चरिंग के लिए अब हम आगे डिस्कस करते हैं दैट हाउ टू गो अबाउट. ठीक है, अब देखो, ये स्ट्रक्चरिंग है. मान लो ये यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज अ टेम्पलेट. ठीक है, टेम्पलेट होते हैं ना, इट इज अ काइंड ऑफ टेम्पलेट जो हर ऐसे में आप फिट कर पाओगे. ठीक है, अब सबसे पहला प्रोस फॉर्मेट ओनली. प्रोस फॉर्मेट मीन्स पैराग्राफ, पैराज ओनली. ठीक है, हेडिंग, नो बुलेट पॉइंट, नो बॉक्सेस, नो फ्लो चार्ट प्लीज, एंड प्लीज नो डायग्राम्स. दिस इज द फुलिशेस्ट थिंग आई कैन सी. ठीक है, तो इट शुड बी इन द पैराग्राफ फॉर्मेट, per page 2 to 3 paragraphs. Next, introduction and conclusion must be around 200 words and no abrupt ending. ठीक है, again flow is very important. Okay, so 2 paragraphs each, again 2 paras, like your first page and the last page should be
the introduction and conclusion. Okay, so that is very important, introduction and conclusion. Okay, per page, one page in the end, beginning, the intro, and the last page, the conclusion. So that is how you have to go, and it should be like it should be a natural flow. Okay, next, subheadings. Somewhere you can use like phrases will work well but may disrupt the flow. So this is something that I didn't do. ठीक है, I didn't do, I did it last year, पर मुझे ऐसा कुछ I didn't get very good marks. इस साल मैंने नहीं किया था. So it's upon your own preference. If you have to use subheadings, use it. If you do not have to do it, just leave it. So it's up to you. ठीक है, subheadings आप खुद देख लेना. It's up to you that you want to put it or not. ठीक है, next, active voice default. The state must protect the vulnerable. ठीक है, not passive form. Very important. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेनी स्टूडेंट्स डू नॉट नो. आपको एक्टिव वॉइस यूज करना है, लाइक व्हाट, लाइक अ स्टोरी टेलिंग. ठीक है, नो पैसिव वॉइस रिक्वायर्ड, पैसिव वॉइस नहीं यूज करना है, ओनली एक्टिव वॉइस. ठीक है, नेक्स्ट, ग्रामर प्लीज ध्यान देना, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, सेंटेंस फॉर्मेशन, दिस इज अ बेसिक मिनिमम. ठीक है, इंग्लिश प्रोफेसर्स आर चेकिंग योर, this is what I have like heard, that English professors are checking your essay. So please make sure, at least it is expected from a future bureaucrat, that you know the bare minimum grammar, the bare minimum sentence formation, and the spellings must be correct. Okay, so this is very much required. Then proper climax, again वही चीज है, essay needs to be meaningful, well crafted, और जो एंड आए, जो कंक्लूजन आए, वो एक फ्लो में हो, वो एक सडन कंक्लूजन ना हो. इनफैक्ट थ्रू आउट द एसे फ्लो मैटर्स. ठीक है, तो ये सब हमने देख लिया कि बेसिक बेसिक रूल्स क्या है. पैराग्राफ्स में लिखना है, इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन के लिए 1 पेज ईच इनफ है. ठीक है, फ्लो आपका होना चाहिए, एक्टिव वॉइस में लिखना है, और स्पेलिंग मिस्टेक्स मत करना. ठीक है, नेक्स्ट, अब कि मैम एवरीवन राइट्स अ एसे, पर मार्क्स का रेंज ऑफ मार्क्स इज टू हाई. ठीक है, रेंज कहाँ से कहाँ तक जाती है, फ्रॉम 60 until 1 let's say 35. सो यू कैन सी पूरा रेंज कितना बड़ा है. तो व्हाट आर द थिंग्स एक्चुअली दैट मैटर्स. ठीक है, किस तरीके से एक एसे गेट्स डिफरेंशिएटेड. सो प्लीज पे अटेंशन. द वेरी फर्स्ट थिंग इज मल्टी डायमेंशनैलिटी. Multi-dimensionality, it should cover social, political, economic, ethical, historical, all angles with an antithesis in your own solution. ठीक है, तो आप यहीं से डायमेंशन देख लो, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, एथिकल. ये हमारा पेस्टल अप्रोच है. ठीक है, जैसे हम पेस्टल अप्रोच लगाते हैं, और एंटीथेसिस, काउंटर आर्ग्यूमेंट एंड सॉल्यूशंस एंड वे फॉरवर्ड. ठीक है, तो मतलब इतना तो बेयर मिनिमम है दैट ईच एसे शुड हैव सर्टेन इट शुड हैव ऑल डिफरेंट एंगल्स, वेदर इट बी इकोनॉमिक एंगल, सोशल एंगल, इट शुड हैव ऑल द डिफरेंट एंगल्स, प्लस उसमें काउंटर आर्ग्यूमेंट होना चाहिए. जो एक थेसिस है, जो मेन मैसेज है, उसका एक काउंटर मैसेज भी दो. तो ऐसे करके आपके डिफरेंट डायमेंशंस हो जाएंगे. लेट्स से अगर आप 20 डायमेंशंस भी लिख दोगे ना, तो आपका काम बन जाएगा. ठीक है, 20 डायमेंशंस का क्या मतलब हुआ कि जैसे मैंने बोला, एक पेज पे 2 पैराग्राफ. ठीक है, 14 into 2 हाउ मच, 14 into 10, लेट्स से कि रफली आपके पास हो गया 28 पैरास. 28 पैरास. ठीक है, जिसमें से 4 पैरास विल गो फॉर योर इंट्रो एंड कंक्लूजन. इंट्रो एंड कंक्लूजन, लेट्स से 25 पैराग्राफ्स is equals to 25 dimensions. Okay, which includes what? Now the dimensions will come from where? Dimensions will come from here. ठीक है, तो dimensions में क्या क्या आ जाएगा? एक तो पेस्टल अप्रोच डाल लो. ठीक है, दूसरा आप फिलोसॉफिकल अप्रोच डाल लो, तीसरा एथिक्स डाल दो, एथिक्स का अगर आपको कुछ नजर आए. चौथा यू कैन राइट द क्वेश्चन अप्रोच. क्वेश्चन लाइक व्हाई, व्हाट, हाउ, why not. ठीक है, then you can also put your counter argument. Okay, ठीक है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए डायमेंशंस आपके पास बहुत सारे होने चाहिए. कैसे डायमेंशंस होंगे? हर पेज पे 2 पैराग्राफ होगा. ठीक है, पहले इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन से आपके 2 पेज कवर हो जाएंगे. उसके बाद रफली यू विल बी लेफ्ट विद 25 पैराग्राफ्स. 25 पैराग्राफ्स में रफली 20 डायमेंशंस. और डायमेंशंस आएंगे कहाँ से? आपके पेस्टल अप्रोच से आ जाएंगे डायमेंशन, फिलोसफी से आ जाएंगे, एथिक्स से आ जाएंगे, आपके पास कोई एग्जाम्पल हो, क्वेश्चन अप्रोच से आ जाएगा, काउंटर आर्ग्यूमेंट एंड एंटीथेसिस देने
से भी 1-2 डायमेंशंस आ जाएंगे। तो ऐसे करके आपके 25 पैराग्राफ्स और 25 डायमेंशंस कवर होके एक पूरी स्टोरी बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट चीज, कोहेरेंस ओवर कंटेंट। कोहेरेंस मीन्स द फ्लो, कनेक्शन मैटर्स मोर देन द वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यही डिफरेंस हुआ। देखो, आप जो मैसेज लिख रहे हो उसे समझाना मोर इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू कि ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल डालने के। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। अगर एक क्वेश्चन है अबाउट ग्रीन फॉरेस्ट पे एक क्वेश्चन है, तो मैं आपको 2 अप्रोचेस दिखाती हूँ। एक में आपने इसको इसमें आर्ग्यूमेंट्स दे दिए कि व्हाई शुड वी सेव इट, और एक में आपने एग्जाम्पल्स भरते गए दैट UNFCC, या फिर आप डिक्लेरेशन डाल रहे हो, या फिर आप जो भी है, आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स देते गए। सो दिस अप्रोच इज मच बेटर एज कंपेयर टू दिस अप्रोच। ठीक है, दैट इज व्हाट इट मीन्स कि कोहेरेंस ओवर कंटेंट, मतलब एक्सप्लेन करना, उस मैसेज को एक्सप्लेन करना, अपने खुद के ओपिनियंस देना मोर इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू कि आप सिर्फ कंटेंट डालते जा रहे हो। नेक्स्ट इज आर्टिकुलेशन, अगेन एक्सप्रेशन ऑफ योर आइडियाज। ओके, एक्सप्रेशन ऑफ योर आइडियाज क्लियरली। ठीक है, सिंपलर वर्ड्स में, जैसा मैंने आपको बताया था, सिंपल वर्ड्स में लिखो। ठीक है, एक्सप्लेन करो आइडिया को, सो यू विल गेट बेटर मार्क्स। ठीक है, अपना खुद का ओपिनियन डालो। जो क्लियर मैसेज है पैराग्राफ का, हर एस्से का जो क्लियर मैसेज है उसे हर पैराग्राफ में आके यू हैव टू एक्सप्लेन। ठीक है, इन योर ओन वर्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट, तो आपने देख लिया मल्टी डायमेंशनल अप्रोच होगा। ठीक है, पैराग्राफ्स अराउंड 25 to 30 पैराग्राफ्स होंगे, उतने ही डायमेंशंस होंगे। डायमेंशंस लगाने के बहुत तरीके हैं, पेस्टल अप्रोच यूज कर लो, फिलोसॉफिकल डायमेंशन डालो, एथिकल डायमेंशन, क्वेश्चनिंग डायमेंशन, काउंटर आर्ग्यूमेंट, ऐसे करके मल्टी डायमेंशनल ऐसे बन जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, विंस्टन चर्चिल का एक कोट है, डेमोक्रेसी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक्सेप्ट दैट इट इज एक्सेप्ट फॉर ऑल दी अदर्स दैट हैव बीन ट्राइड। ठीक है, तो इसका मैसेज क्या था कि अभी तक का तो ठीक ही है, अभी तक का अच्छा फॉर्म है एज कंपेयर टू कि अभी तक जितने ट्राई हुए थे। सो ऑल्दो ही इज बीन राइटिंग, बट द वे ही इज राइटिंग ही हैज कवर्ड डिफरेंट डायमेंशंस। इसने वर्स्ट भी बता दिया, एक्सेप्शन भी बता दी, एंड पूरी स्टोरी बना के लिख दी। तो ऐसा ही होना चाहिए, इट शुड बी मल्टी डायमेंशनल, इट शुड शो सम थेसिस एंड एंटीथेसिस एंड योर ओन स्टैंस। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके अपने ओपिनियन, आपके खुद के आर्ग्यूमेंट्स, आपका खुद का एक्सप्लेनेशन मैटर्स अ लॉट। ठीक है, सो लेट्स गेट फर्दर। Now what are the message to, what are the things that you should be avoiding? So your don'ts. ठीक है, ध्यान देना कि क्या क्या गलतियां नहीं करनी है। ठीक है, फर्स्ट थिंग इज रेपिटेशन, अवॉइड रीस्टेटिंग द सेम आइडिया। ये बहुत जनरल है। ठीक है, सेम चीज को रिपीट मत करना। अगर एक एग्जाम्पल, एक कोट, एक फ्रेज रिपीट हो गया है आपके एस्से में, फिर उसे अगेन उसी चीज को रिपीट करना इज नॉट अ पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट चीज, वन साइडेड व्यूज, नो काउंटर आर्ग्यूमेंट आपने दिया। ठीक है, वेरी वेरी अगेन इंपॉर्टेंट, आपने द एस्से का जो मैसेज है उसके अगेंस्ट में आपने कुछ नहीं लिखा। लेट्स से कि अगर देयर इज एनी मैसेज that let's say questioning in the democracy is the soul of democracy। ठीक है, questioning in the democracy is the soul of democracy। ठीक है, अब इसका एक काउंटर आर्ग्यूमेंट जरूर दे देना कि ओके, till a certain extent questioning is good, but violent questioning, questioning with vested interest, questioning to overthrow the government, this is not correct। ठीक है, तो हर टॉपिक का एक काउंटर व्यू देना जरूरी है। नेक्स्ट, एक्सट्रीम असर्शंस लाइक पार्टिजन लग रहे हो आप, या फिर पॉलिटिकल अप्रोच, या फिर कुछ एक्सट्रीमिज्म दिख रहा है, प्लीज डू नॉट डू दैट। एंटायर किसी भी पेपर में कुछ ऐसा स्टैंड नहीं लेना एकदम से आपको कि यू आर राइटिंग ऐसे और उसमें आपने गवर्नमेंट को ही क्रिटिसाइज कर दिया। प्लीज डू नॉट डू दैट। ओके, दैट इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। ठीक है, तो वो मत करना, अपना न्यूट्रल एस्से बना के चलो। ठीक है, उसके बाद इन्वेंटेड डेटा, ये बहुत होता है, नो फैब्रिकेशन ऑफ डेटा, नो प्लीज ये मत करना, बिकॉज दे आर लर्नेड प्रोफेसर्स। ओके, व्हाट डज दिस मीन्स, जीएस में बहुत बच्चे कहते हैं दैट वी मेक आवर ओन डेटा और हम लिख देते हैं। प्लीज डू नॉट डू दैट, अपना डेटा खुद से बना के मत लिखना। एंड सबसे बड़ी बात है, एस्से में डेटा का ज्यादा काम भी नहीं है। ठीक है, अगर आप किसी फिलोसफर का नाम लिख रहे हो, इफ यू आर राइटिंग एनी पोएम और समथिंग लाइक दैट, तो मेक श्योर करना कि उसके बारे में यू हैव अ गुड नॉलेज। ठीक है, सो प्लीज डू नॉट इन्वेंट थिंग, मेक श्योर दैट
that your knowledge and your whatever you are writing is to the 100% of your surety. तो बना के कुछ मत लिखना, जो पढ़ रखा है वो लिखना, ठीक है. ऑटोबायोग्राफिकल मत बना देना, मतलब पर्सनल ग्रीवेंसेस देने लग गए. डू नॉट डू दैट. वैसे भी मैंने बोला है कि एक्टिव वॉइस में लिखना है, पैसिव वॉइस में मत लिखना है, ठीक है. एक्टिव वॉइस. तो इसीलिए I, me, please do not do that, okay? Instead, it should be quoting the other kind of, datas and scholars, वो सब करना. अपना, do not go into your personal grievances or something like that, okay? Now, complex vocabulary, मैंने again कहा था simple, clear language, very important, simple, clear language. Okay, try to be in a simple and clear language, that is very important. Do not try to write lot of, मतलब बहुत ज़्यादा flowery बना दिया, 4 लाइन के sentences लिख रहे हैं, but if still and you are trying to connect different, तो इतना ज़्यादा complex नहीं बनाना, simple रखना है अपने lines को. Next, excessive quotes. अगेन बहुत सारा, देखो, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज रॉन्ग. जो आपका ऐसे होना चाहिए, दैट शुड बी अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग. इट शुड बी अ मिक्स ऑफ योर कोट्स प्लस डेटास प्लस योर एक्सप्लेनेशन, योर ओन काउंटर आर्ग्यूमेंट. तो एक मतलब अगर एक पेज पे एक कोट या फिर अगर एक एसे में 3-4 कोट आए तो इट्स गुड इनफ. पर ऐसा नहीं है कि आप हर पैराग्राफ में एक कोट लिख रहे हो. यू आर बिगनिंग ऑल्सो विद द कोट, एंडिंग विद ऑल्सो अ कोट, सो दैट विल बी काउंटर इफेक्टिव. ठीक है, आपको मेक श्योर करना है कि आप हर चीज बैलेंस्ड में रखो, तभी तो वो मल्टी डायमेंशनल लगेगा. ओके, नेक्स्ट, ओवर अंडरलाइन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत बच्चे कर देते हैं, ज्यादा अंडरलाइन नहीं करना है. ओनली अंडरलाइन द मेन एग्जाम्पल, या फिर जब मेन आपने अगर कोई फ्रेज लिखा है तो ओनली दैट. डू नॉट ओवर अंडरलाइन, ठीक है. अंडरलाइन ज्यादा मत करो. एंड अगेन, जीएसिफिकेशन, ये मैंने शुरू में ही कह दिया था. योर एसे शुड नॉट बी अ जीएस आंसर. No points dumping, schemes, initiatives, data. मैंने I did this in the last mains that I wrote. ठीक है, but then this means I completely didn't do that mistake and तभी मेरा स्कोर 25 मार्क्स इंक्रीज हो पाया. क्यों? क्योंकि मैंने जीएस ना लिख के मोर ऑफ फिलोसॉफिकल, मोर ऑफ आर्ग्यूमेंटेटिव कोट लिखा. ठीक है, कोटिंग, आर्ग्यूमेंटेशन, क्वेश्चनिंग अप्रोच, एक्सप्लेनिंग द डिटेल्स ऑफ द मैसेज, तो ऐसे करके जाना है. ठीक है, तो आप देख लो, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए. आपका एक न्यूट्रल, एक फिलोसॉफिकल फ्लो में जाता हुआ ऐसे होना चाहिए. एंड इट शुड कवर मोस्ट ऑफ द डिफरेंट काइंड ऑफ डायमेंशंस. ठीक है, अपने खुद की आइडियाज नहीं, मतलब आइडियाज दो बट अपने खुद के पर्सनल ग्रीवेंसेस नहीं दिखाने उसमें, ना ही आपको जीएस का बहुत ज्यादा डेटा डालना है. ठीक है, नेक्स्ट, ओके, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी. नाउ कमिंग ऑन टू द सोर्सेस, वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि मैम क्या सोर्सेज यूज करें. एंड देन द प्रैक्टिस पार्ट, ठीक है, या फिर आंसर राइटिंग पार्ट. ठीक है, दोनों देख लेते हैं. पहले कि पढ़ेंगे कैसे एंड फिर की प्रैक्टिस कैसे करेंगे, दोनों ही पार्ट्स आर इंपॉर्टेंट. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद फर्स्ट दैट व्हाट आर द सोर्सेज, और मैंने क्या क्या करा था एंड एक्चुअली में आपको हेल्प क्या करेगा. देखो, सबसे पहले तो कोई भी आप कोचिंग का अगर मटीरियल इफ यू वांट, लाइक वी ऑल्सो हैव एट अरम IAS अकेडमी, तो आप कोचिंग का एक कंपाइलेशन ले सकते हो. ठीक है, वो भी अच्छा है. उसके अलावा क्या कर सकते हो मैं वो बताती हूँ. ठीक है, सो क्या क्या कलेक्ट होने चाहिए. आपके पास एक बैंक बनाना है, जैसे मैंने एथिक्स में बताया था. एथिक्स में मैंने सिमिलरली ऐसे ही बताया था कि एक एग्जाम्पल का बैंक, टॉपिक वाइज एग्जाम्पल, ठीक है, टॉपिक वाइज कोट्स एंड टॉपिक वाइज फ्रेजेस होने चाहिए. अगेन इसमें भी सेम, आपके पास कुछ फिलोसॉफिकल कोट्स होने चाहिए, कुछ एफोरिज्म्स होने चाहिए, कुछ एनेक्डोट्स या फिर स्टोरीज होने चाहिए, थिंकर्स होने चाहिए, थिंकर्स के आइडियाज होने चाहिए, फिलोसोफर्स होने चाहिए, कुछ डेटाज एंड रिपोर्ट्स होने चाहिए एंड कुछ एग्जाम्पल्स होने चाहिए. मैं सबका कुछ कुछ आपको बताती हूँ. अब कोट्स आप ऐसे लिख के रख लो जो कहीं भी फिट हो सके. ठीक है, फॉर इंस्टेंस मैंने क्या याद रख रखा था, मैंने वो जो रोड नॉट टेकन है, रोड नॉट टेकन पोएम, उसकी लाइंस मैंने आई एक्चुअली रटाफाइड दोस लाइंस एंड इस बार एस्से में मैं उसकी लाइंस को एज अ कंक्लूजन भी लिख के आई हूँ. ठीक है, सो दैट इज द फर्स्ट थिंग. जैसे कि ऐसी पोएम्स याद रखो जो कि हर जगह फिट हो जाए. ट्राई टू, यू कैन ऑल्सो यूज AI. ठीक है, you can use ChatGPT and AI to collect these material. Okay,
You can tell the AI that give me material that could be used across the different themes of essay so that it could be fitted anywhere. Again anecdotes very important, जैसे कि एडिसन्स का 1000 years failures, या फिर लुई द ब्रेल था, लुई ब्रेल जिन्होंने जो who was blinded and उन्होंने मतलब वो blind हो चुके थे and he created the most unique system जो ब्रेल सिस्टम होता है so that blind people can read. तो ऐसी ऐसी स्टोरीज कलेक्ट कर लो, ठीक है. या फिर यू हैव अ लॉट ऑफ स्टोरीज. ओके, कोविड-19 की इटसेल्फ एक स्टोरी बन जाएगी कि हाउ वी कैन लर्न फ्रॉम कोविड-19 की दुनिया कैसे चल रही थी एंड हाउ इन अ शॉक एकदम से अ वायरस डिस्ट्रॉयड आवर एंटायर कॉन्फिडेंस एंड देन हाउ वी लर्न फ्रॉम इट एंड मूव्ड फॉरवर्ड. ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके शॉर्ट स्टोरीज याद रख लो. फिर थिंकर्स एंड फिलोसोफर्स, ठीक है, इसमें आप प्लेटो, सोक्रेटिस and try to have new scholars. ठीक है, new scholars. You can also have Paulo Coelho. ठीक है, Paulo Coelho. सो ऐसे स्कॉलर्स आप लिख के रख लो एंड उनके कुछ आइडियाज लिख के रख लो सो यू कैन कोट देम मेनी टाइम्स. देन डेटास, रिपोर्ट्स एंड स्टैटिस्टिक्स एंड एग्जाम्पल्स. तो ऐसे ही करना है आपको. एक बैंक बना लेना है टॉपिक वाइज, कहीं किसी कोचिंग से मिले, यू कैन टेक फ्रॉम देयर वॉट एवर सूट्स यू एंड जस्ट मेक श्योर ये आपका पूरा सोर्स हो जाएगा. ठीक है, एक बार आपका सोर्स हो गया, आप उसे एक दो बार पढ़ लो. ठीक है, पढ़ते रहोगे तो आइडियाज आपको बार बार आते रहेंगे. एक बार पढ़ लो, उसके बाद आ जाती है प्रैक्टिस कैसे करनी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. तो सबसे पहला होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग. ठीक है, एंड बिल्डिंग द हैबिट ऑफ थिंकिंग एंड कंसेप्चुअल थिंकिंग. अब ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करना होता है, रियल एग्जाम में भी आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करना होगा. आपका जो लास्ट का पेज होता है उधर आप आइडियाज लिखते रहो. ठीक है, अब जैसे मेरा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि लाइफ इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन. ठीक है, तो मैंने इसका ब्रेनस्टॉर्म किया कि ठीक है, फर्स्ट आई ट्राई टू गेट सम एग्जाम्पल्स. मैंने लुई ब्रेल का एग्जाम्पल ले लिया. ठीक है, मैंने कोविड-19 का एग्जाम्पल ले लिया. ठीक है, उसके बाद मैंने इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल का एग्जाम्पल ले लिया. तो ऐसे एग्जाम्पल्स मैं ब्रेनस्टॉर्म करती रही. उसके बाद मैंने एक कंक्लूजन के लिए सोचा कि मैंने रोड नॉट टेकन की पोएम बनाऊंगी, वो मैं कंक्लूजन में लिखूंगी. इंट्रोडक्शन के लिए मैंने कुछ सोच लिया. तो ऐसे ऐसे करके सारे आइडियाज ब्रेनस्टॉर्म करो और फिर उसे एक फ्लो में डालना है. ठीक है, तो वही प्रैक्टिस में आपको करना क्या है, यू कैन प्रैक्टिस, मतलब अगर जैसे जो बच्चे मेंस दे रहे हैं एक ऐसे हर वीक प्रैक्टिस कर लो, या फिर अदरवाइज जो प्रैक्टिस वैसे कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, सो हर मंथ में एक ऐसे लिख के देख लो, मोर देन सफिशिएंट होगा. या फिर हर मंथ में 2 ऐसे. ठीक है, सो 1 से 2 ऐसे पर मंथ. ठीक है, 1 essay per 10 days. This would be more than enough. ठीक है, ओके. नाउ ब्रेनस्टॉर्मिंग मीन्स व्हाट, आप अपने सारे ये ऐसे ब्रेनस्टॉर्म होगा. ब्रेनस्टॉर्मिंग ऐसे होती है, एक शीट लो, उस पे सारे आइडियाज जो भी उस टॉपिक से रिलेटेड है लिखते रहो. आर्ग्यूमेंट्स, काउंटर आर्ग्यूमेंट, सबको इकट्ठा कर लो और उसके बाद एक फ्लो में जाके आपको उसे एज अ एसे लिखना होगा. ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करना है, रीड द ओपिनियन पीसेस. अगेन ये किस कहाँ का, ये सोर्सेज का पार्ट है. दिस इज योर सोर्स अगेन. ठीक है, सोर्सेज में एडिटोरियल्स पढ़ना, हाउ एडिटोरियल्स आर बीन रिटन. ठीक है, उनका फ्लो कैसे होता है, बहुत इंपॉर्टेंट. ठीक है, सो स्टडी द एडिटोरियल्स फॉर द स्ट्रक्चरिंग, कोहेरेंस, वर्ड्स कैसे लिखे जाते हैं, आर्ग्यूमेंट्स कैसे दिए जाते हैं, काउंटर आर्ग्यूमेंट कैसे दिए जाता है, फ्लो कैसे बनाया जाता है. ऑल दिस यू विल रिमेंबर फ्रॉम योर एडिटोरियल्स. तो एडिटोरियल्स भी आप पढ़ सकते हो. नेक्स्ट, राइटिंग रेगुलरली. एग्जाम हॉल ब्रिलियंस विल बी preparation in brilliance, and reading about the swimming will not make you learn swim, you have to rehearse it. ठीक है, तो practice makes a man perfect. मैंने आपको बता दिया, जो ऐसे if those who are giving next year एक ऐसे हर 10 दिन में brainstorm कर लो, and those who are giving this year 1 ऐसे per week लिख लो. क्योंकि जस्ट टेक द एग्जाम्पल ऑफ स्विमिंग. अगर आपको कोई पढ़ा देता है कि स्विमिंग में ऐसे ऐसे करना है, एक मतलब 10 पॉइंट्स दिखा दिए कि यू हैव टू कीप योर हैंड्स फर्स्ट एट राइट देन लेग्स बैक, ऐसे, तो उससे आप स्विमिंग सीखोगे नहीं. स्विमिंग आप सीखोगे कब, व्हेन यू विल एक्चुअली रिहर्स. सो प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो दोनों पार्ट्स देख लिए हमने. पढ़ना कहाँ से है, एक बार आपने सारे सोर्सेज पढ़ लिए, सॉर्ट आउट कर लिए, उसके बाद बस प्रैक्टिस करना है. इसीलिए ये पेपर इतना अच्छा है दैट यू डू नॉट हैव टू प्रिपेयर मच. ठीक है, प्रिपेयर ज्यादा करना ही नहीं, और इंटरेस्टिंग भी है. एक टॉपिक दे दिया जाएगा, उस पर अपने आइडियाज दिखाते रहो, तो काफी इंटरेस्टिंग है. सो यू नो, दोनों चीजें आप देख लो अच्छे से, सोर्सेस और डेली प्रैक्टिस कैसे करना है. ओके ओके, ये प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी हो गई. नेक्स्ट, ओके, सो दिस इज इट.
ठीक है, पूरा हमने देख लिया, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी देख ली, वी सॉ द सोर्सेज, ठीक है, और प्रैक्टिस करने, दिस शीट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप अच्छे से देख लो कि क्या क्या सोर्सेज हैं और प्रिपेयर करोगे कैसे। डेली प्रैक्टिस भी कर सकते हो, एक एस्से हर 10 डे में लिख के देख लेना, एंड यू नो एडिटोरियल्स पढ़ते रहो, उससे एस्से राइटिंग होती रहेगी। ओके, एंड दीज आर द मिस्टेक्स टू अवॉइड, एवरीथिंग हैज बीन एक्सप्लेन्ड। सो स्टूडेंट्स, जस्ट 2 मेजर थिंग्स, फर्स्ट प्रिपेयर एंड देन प्रैक्टिस। एस्से इज वन ऑफ दोज पेपर्स जहां पे यू विल गेट द मैक्सिमम बेनिफिट। 120 एक बहुत अच्छा स्कोर है जो आप कर सकते हो विद लीस्ट अमाउंट ऑफ एफर्ट्स। सो जो भी मैंने मिस्टेक्स बताई है, ये मिस्टेक्स नहीं करना है, एंड सोर्सेज पढ़ के एंड रेगुलर प्रैक्टिस एंड फिलोसफिकल एस्से लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो फिलोसफी एंड मल्टी डायमेंशनैलिटी, इन 2 चीजों को हमेशा याद रख के देन keep on writing, so you will get a very good score, and we are here to help you for any help you want in essay or anything. So thank you so much and stay tuned.